Hi, good afternoon. Today's video is on the Revati Nakshatra. Today's video is on happiness. This is my happiness. Mr. Oreo Ghosh. Oreo একটুখানি মুখটা দেখাতে পারিস তো? হুম Really, busy is a simple word actually. Some of my friends and students, or many of my friends and students, we are healing together a boy who is from a very poor family, and he fainted 2 days back. He fainted by some head injury, and he is unconscious since then. So some of my friends and students, many of my friends and students, we are healing that boy. কি করছো বেটা? এরকম করে কাজ করা যায় কি? सी ओरियो ऐसा ही है. ओरियो को बस माँ समझ में आता है. He understand two things, food and माँ. So it's a very difficult time. Fasting, although my Guruji who taught me healing, not only one person, I have been taught by several spiritual gurus. So fasting is mandatory. Not having regular food is mandatory. If you are having food in the breakfast or lunch, even then that should be very simple. That should be very simple means if it is not cooked, that is best. Take some fruits, take some salad. It's don't take non-veg. Non-veg does not mean pyaz lesun. Don't take non-veg means fish or chicken or egg. Don't take. And because healing is a method of resolving your issues without using any medicine. So when you are not using any medicine, you are using the universal power only, because we don't have any power. हमारे पास इतना कुछ भी नहीं रहता है कि जिससे हम अपने पावर से किसी को ठीक कर सकें. ऐसा तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता. So it's we resolve the issues by the power of universe. So universe के power से करने के लिए universe को थोड़ा सा मस्का मारना पड़ता है. So universe has created that chicken, and universe has created you also. So if you eat chicken, universe will be against you definitely. Ki for universe or for God, value of a chicken and value of human being is same. So उनका एक क्रिएशन को आप डिस्ट्रॉय करके दूसरे क्रिएशन जो कि आपका क्लाइंट है उसके लिए कुछ अच्छा चीज़ मांगोगे तो आपको मिलेगी नहीं. वॉट एवर. सो थोड़ा डिफ़िकल्ट है. डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि माई गुरुजी यूज्ड टू से इफ़ द लाइक द पेशेंट इज़ वेरी सीरियस, डोंट टेक दैट केस. Like cancer first stage, second stage, you can heal. Don't take patient of cancer third or fourth stage. You yourself will be sick. Yes, I have faced it. Once upon a time मना करने के बावजूद I was healing one friend जो cancer fourth stage की थी, and another uncle वो भी cancer fourth stage के थे. दोनों को मैं heal कर रही थी. Every day fasting for months. And there was a time when I used to faint, like गिर गई घुटने के बल किसी तरीके से चल के. जिसके पापा को कर रहे हैं, शी इज़ माई नेबर, उसके घर में घंटी बजा रहे हैं कि उसके घर में जाके बालकनी में चटाई बिछा के सो रहे हैं. क्योंकि अपने घर में अगर फेंट हो जाएंगे, उसके पापा है वो कुछ नहीं कर रहे हैं. शी इज़ नॉट डूइंग. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिलीजियस कि फलाना मंदिर पे गए और मन्नत करके आए. इफ़ माई फादर विल बी ओके, आई विल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट टू 100 पीपल, दिस काइंड ऑफ समथिंग, ओके, समथिंग और अदर. एंड उसके बाद खुद कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. लाइक पापा डेथ बेड पे हैं, कैंसर हुआ है,
हाँ, भाई लोग तो कर ही रहे हैं, मैं तो ससुराल में हूँ। पीपल कैन नॉट इमेजिन कि आई एम फास्टिंग बिकॉज मन्नत है मेरा। हीलर्स डू दैट। व्हेन आई डू प्रोफेशनल हीलिंग आई टेक मनी, बट ऐसे जान पहचान के कुछ कुछ नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको प्यार से हील किया है बहुत सालों तक फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और उसमें इतना भयंकर हालत हो जाती है कि कभी कभी फेंट होने लायक हालत होती है। जब आप 2 महीना 3 महीने तक एवरीडे सुबह एक मुट्ठी चना खा के और शाम के 4 बजे खाना खाओगे तो बेहोश होने लायक हालत होती है। हीलिंग के रूल में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खाली पेट रहो। यू कैन ईट समथिंग, बट इट इज़ लाइक भर पेट खा के पूजा नहीं होता है। पूजा नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पूजा, आई डोंट डू पूजा, आई एम नॉट रिलीजियस एट ऑल। मैं पूजा वूजा कुछ नहीं करती, इसीलिए पूजा के बारे में मैं कह भी नहीं सकती हूँ। आई डू मेडिटेट ओनली एंड हीलिंग ओनली। सो मेडिटेशन यू कैन डू एट एनी टाइम एट एनी पोजिशन, बट हीलिंग के लिए ये ज़रूरी है। तो मेरे सर भी बोलते हैं कि जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, नहीं तो बहुत सीरियस पेशेंट है, ऐसा पेशेंट का अगर हीलिंग करोगे तुम्हारी खुद की तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए नहीं करना चाहिए। But many of us are doing free of cost to that boy. The boy has lost his father. He is very poor village boy, and his mother is there. उसके माँ and उसके भाई है, ठीक है। सर पे कुछ चोट लगी जिस वजह से वो बेहोश पड़ा हुआ है। 2 दिन करीब करीब हो गया। सो फॉर दैट आई वॉज वेरी बिजी सिर्फ नहीं, क्योंकि हीलिंग दिखता नहीं है ना। आप पूजा पाठ करोगे तो भगवान का फ़ोटो दे सकते हो कि मैंने कान्हा के लिए ड्रेस बनाया, ड्रेस खुद बनाया, ख़रीद के लाया, मैं इतने पैसे से वो वाला चीज़ लाया, तश्तरी लाया चांदी का, इतने पैसे से। तो दीज आर द थिंग्स, बिकॉज रिलीजियस थिंग्स यू कैन शो। बहुत सारे लोग हैं जो रिलीजियस चीज़ें जो है वो बहुत फ्लॉन्ट करते हैं कि फ़लाना मंदिर में गए थे हम, कोई फेमस सा मंदिर में जाते हैं तो फ़ोटो नहीं देते हैं, खूब फ़ोटो देते हैं। और इतने का प्रसाद चढ़ाया, इतने का मन्नत था, चढ़ाते हैं। बट हीलिंग इज़ समथिंग सो क्वाइट कि आप अपने घर में भूखे पेट या एक टमाटर एक खीरा खा के 3 बजे 4 बजे तक आप भूखे पेट कर रहे हो किसी का हीलिंग। वो किसी को दिखा नहीं सकते हो आप। यू कैनॉट शो एनी वन दैट सी आई एम हीलिंग दिस पर्सन, ठीक है। आप किसी को भी उस मेथड को नहीं दिखा सकते हो। क्या दिखाओगे आप? एक जगह ध्यान में बैठे हुए आंख बंद करके, उसमें दिखता तो कुछ नहीं है ऊपर से, बिकॉज दिस इज साइकिक हीलिंग। साइकिक हीलिंग क्या होता है? साइकोलॉजिकल। एवरी एक्शन इज साइकोलॉजिकल। आप सिर्फ ध्यान में चुपचाप बैठे हुए हो। देयर आर एक्शंस विच यू आर डूइंग मेंटली। तो ऐसे जब केसेस आते हैं ना कि बहुत सीरियस केस, डॉक्टर बोले हैं 50% चांस है सक्सेसफुल होने का, बहुत कम चांस है, कोई इंसान कुछ दिन से बेहोश पड़ा हुआ है, वो घर का बड़ा लड़का है, एकदम छोटा सा लड़का है, आप कह सकते हो ओनली 23-24 ईयर्स ओल्ड, ऐसे उस समय यू फील वेरी डिस्टर्ब्ड। ऑल्दो आई डोंट नो हिम एट ऑल, पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ। मेरे किसी फ्रेंड के ऑर्गेनाइजेशन में वो था, एंड माई फ्रेंड इज स्पेंडिंग, शी हैज़ स्पेंड 6 lakhs, क्योंकि उसके ऑर्गेनाइजेशन में वो लड़का था, इसलिए शी स्पेंड 6 lakhs फॉर पूरा सर्जरी एंड एवरीथिंग। एंड क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसकी फैमिली में तो पैसे का तो कुछ भी नहीं है, तो बट दीज डेज आर स्ट्रेसफुल तो होता ही है ये सब दिन, क्योंकि हीलिंग का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि मैंने अंग बंग चंग 3 मंत्र पढ़ दिया और वो आदमी जिंदा होकर बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। हीलिंग इज़ वेरी स्ट्रेनुअस मेथड, एंड दुख की बात यह है कि आप हीलिंग में कुछ भी दिखा नहीं सकते हो किसी को, क्योंकि आप खा रहे हो वो तो आप दिखा सकते हो। मैं प्रसाद खा रही हूँ, 10 टाइप का प्रसाद का फ़ोटो दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ उसका तो आप फ़ोटो भी नहीं दे सकते हो ना, क्योंकि उपवास का तो फ़ोटो नहीं होता। मैंने धूमधाम से पूजा किया, मेरे पूजा के जगह पे मैंने इतना बत्ती और चांदी के दस्तरी एट्सेट्रा यू कैन शो, बट मैंने ध्यान किया, उसमें आप क्या दिखा सकते हो? आप दिखा नहीं सकते हो। हाँ, आप आँख बंद करके एक फ़ोटोग्राफ पोस्ट कर सकते हो, बट बिना खा के 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक दोपहर तक बिना खा के, नहीं तो थोड़ा सा सब्जी ले लिया या थोड़ा सा दाल पी लिए, मतलब बैठ के आराम से नहीं खा सकते हो। ये जो सिचुएशन
इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना और उस सिचुएशन से जो स्ट्रेस जाती है, बिकॉज जब डॉक्टर ही बोल देते हैं कि चांसेस आर ब्लीक, उस समय ये बहुत, देर आर फ्यू मेथड्स जो हम ट्राई ही नहीं करते हैं, बट सिंपल हीलिंग जो है हम ट्राई कर सकते हैं, बट सम डिफ़िकल्ट मेथड्स है जो हम इस टाइप के सीरियस इश्यूज़ में नहीं यूज़ करते हैं। वो तो जो हीलर्स हैं जो पूरा हीलिंग सीख चुके हैं मुझसे, उनको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जब सीरियस पेशेंट पे ये हीलिंग यूज़ हो सकता है, ये नहीं यूज़ हो सकता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी एंड दिख भी रहा है शायद चेहरे में। कॉलेज ईशान को छोड़ने गए थे। ईशान आजकल 3 घंटे में छुट्टी हो जा रहा है, एग्ज़ाम्स पास आ रहा है, तो आई एम स्टेइंग देयर फॉर 3 आवर्स, क्योंकि छोड़ के ड्रॉप करके घर आने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर कॉलेज से एवरी डे ही कम्स फ्रॉम कॉलेज बाय बस एंड ऑटो एंड ऑल, उसमें 2.5 घंटा लगता है उसको कॉलेज से घर पहुंचने में, तो उसमें बहुत टायर्ड हो जाता है। एग्ज़ाम्स पास है, तो इसलिए मैंने कहा कि आई विल स्टे देयर बिकॉज माई होल बिजनेस इज़ ऑनलाइन, हीलिंग इज़ ऑनलाइन, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑनलाइन, और जो नीटिंग एंड क्रोशे जो भी मेरा बिज़नेस है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। तो मैं गाड़ी में बैठ के करूँ, कॉलेज के गार्डन में बैठ के करूँ, या अपने घर के गार्डन में बैठ के करूँ, या छत पे बैठ के करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन बिजनेस मैं कहीं भी बैठ के कर सकती हूँ। सो आई वॉज डूइंग माई क्रोशे वर्क एंड आई वॉज डूइंग हॉरोस्कोप, बोथ यही सब कर रहे थे, दिन भर वहाँ बैठे हुए थे। तो जब छुट्टी हुआ तो ईशान का एक फ्रेंड वो भागा भागा आया मेरे पास। हिज नेम इज़ सरफराज। एक तो नाम से ही खुश हो गई बिकॉज आई हैड अ फ्रेंड। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा भी एक फ्रेंड था, नॉट कॉलेज, जब भारसिटी में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो आई ऑल्सो हैड अ फ्रेंड सरफराज। तो नाम सुन के बोल के अरे माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो इन मेडिकल। 2-3 साल मेडिकल पढ़ने के बाद उसके फैमिली में बहुत क्राइसिस कुछ हो गया था, शायद किसी का डेथ हो गया या कुछ क्राइसिस हो गया था, तो ही हैड टू कम बैक। उसको आधा अधूरा पढ़ाई करके घर वापस आना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसा सेटबैक हो गया था कि और आगे पढ़ना पॉसिबल नहीं था। दिस बॉय, ये लड़का जो है ईशान से बड़ा है, काफ़ी 4-5 साल बड़ा है, क्योंकि ईशान के क्लास के सारे बच्चों का तो फ्री हॉरोस्कोप होता है। तो भागा भागा आया, आंटी मेरा हाथ देख लो। नहीं, हाथ में नहीं देखती, उसमें उतना एक्यूरेसी भी नहीं रहता है। हैं तू खुकुद दे के नीचे नहीं जा आगे। तो ही गेव मी बर्थ डिटेल्स दिया, और वहाँ आधा घंटा करीब बैठ के उसका किए। When I become upset, I study. When I am not upset, happy, then also I study. Like लोग कहते हैं ना कि दोस्त नहीं, मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, बिकॉज उतना अभी तो आई एम ऑलरेडी 55, तो 55 ऐसे ही हो गया। ओके, तो मतलब हो सकता है 60 में मैं मर जाऊँ, हो सकता है 65 में मर जाऊँ, तो ये टाइम मैं बर्बाद क्यों करूँ। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं और पढ़ना चाहती हूँ कि अगले जन्म में जो है, अगले जन्म का पढ़ाई भी इस जन्म में कर लूँ। तो जिन्हें पता नहीं है, आई एम PhD विथ मैनेजमेंट, विथ हीलिंग भी बहुत टाइप का सीखे हैं, एस्ट्रोलॉजी महावैदिक से सीखे हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। लेकिन कुछ भी सब्जेक्ट का अगर आप एक सिलेबस, एक कोर्स कर लो तो उससे कुछ नहीं होता। आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी एवरी डे। मैं खाना पकाती हूँ, वीडियोस चलता रहता है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसका नोट्स लेती हूँ, वहीं पर रखा रहता है। देयर आई हैव येलो टेबल, किचन में एक येलो टेबल है। ঈশান এগুলোকে সরা, এইভাবে ভিডিও করা সম্ভব না, এত বাজি এগুলো। ঈশান আমার চশমা টশমা ভেঙে দিচ্ছে। ঈশান ইমিডিয়েট নিয়ে যা। एक्चुअली दे वॉन्ट टू प्ले विथ मी। देखो, दिख रहा है 2 कुत्ते। So from yesterday I was studying only Revati Nakshatra, which is the last nakshatra and which is the biggest nakshatra, and which is the nakshatra which is the starting point of solar system, ऐसा बोला जाता है। कि रेवती का इंग्लिश क्या है आई रियली डोंट नो, लेकिन बोलते हैं कि रेवती का इंग्लिश वर्ड नेम जो भी है, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ
solar system. Revati is the last nakshatra, that's why it is doorway to heaven ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पूरा चक्र अश्विनी से जो शुरू होता है वो रेवती में ख़त्म हो जाता है. इसलिए अश्विनी एक छोटा बच्चा और रेवती एक बूढ़ा सा इंसान है. बूढ़ा सा इंसान मतलब उम्र का बूढ़ा नहीं, सोल का बूढ़ा. आई एम ए वेरी एजेड सोल, बहुत बूढ़ा सोल हूँ. और 2-4 बार पैदा होने के बाद मोक्ष मिल जाएंगे और पैदा नहीं होना पड़ेगा. किसको मोक्ष मिलता है? जो माफ़ कर सकता है. कैसे आप पहचानोगे कि किसके मोक्ष पास है? जो हर एक इंसान को, जो उसके ऊपर टॉर्चर, जितना भी टॉर्चर किया है, सबको माफ़ करते हुए भी स्माइलिंग फेस रखते हैं, उन्हें समझ लो कि मोक्ष प्राप्ति होने वाला है बहुत जल्दी. सो रेवती मेरा आत्मकारक है, इसलिए मैं रेवती बहुत स्टडी कर चुकी हूँ पहले ही. बट yesterday and today I studied like 4-5 new astrologers video also. And when Sarfaraj came to me, most surprising thing was that boy is having 4 or 5 planets in Piscean. Among those, 3 planets are in Revati. That boy is having 3 planets in Revati. Now, what is the importance of Revati? I cannot explain today. क्योंकि वही उस लड़के का सर्जरी एंड उस लड़के का तबीयत ख़राब लेके इतना ज़्यादा बात करने कि रेवती लेके बात करने का टाइम नहीं है. बहुत लंबा वीडियो होने से मुश्किल है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ रेवती इज़ it is related to सेवा एंड ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन. एंड हो सकता है कि सचमुच का डॉक्टर है, हो सकता है सचमुच का नर्स है, हो सकता है सचमुच का डॉक्टर या नर्स नहीं है, लेकिन फिलैंथ्रोपी. ठीक है. तो सरफराज इज स्टडिंग विथ ईशान, तो वो तो सचमुच का ही डॉक्टर बन रहा है. बट माई केस इट इज़ आत्मकारक. तो आत्मकारक है, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था. सारे एस्ट्रोलॉजर्स, जितना एस्ट्रोलॉजर्स मेरा हॉरोस्कोप बचपन में देखे थे, पापा को बोले थे कि इसको डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन मेरे पापा मुझे एंट्रेंस में ही बैठने नहीं दिए, मेडिकल एंट्रेंस में, डर से कि अगर मैं क्वालिफाई हो जाऊं अपने भाई से प्रॉपर्टी का बंटवारा मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल का तो इतना खर्चा है, कहाँ से लाएंगे. छोटा सा सैलरी था उनका. लेकिन आप रोक नहीं सकते हो जिसको डॉक्टर बनना है. अगर किसी का हॉरोस्कोप में लिखा हुआ, माई PhD आई हैव डन इन पैथोलॉजी लैब. मैं पैथोलॉजी लैब में ही PhD किया है मैंने अपना. देन आई बिकेम डॉक्टरेट. ठीक है, वो बात तो है. अभी मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट आई डू हीलिंग विदाउट मेडिसिन का. बट हीलिंग इज़ नॉट अबाउट ओनली बीमारी ठीक करने वाला डॉक्टर. हीलिंग इज़ अबाउट लाइक इट डील्स विथ ऑल काइंड ऑफ इश्यूज़. आपका रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकता है, प्रॉपर्टी इश्यूज़ हो सकता है, पैसे वाला इश्यूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज़. मूड ख़राब होने का कारण और भी बताएंगे. सुबह अगर एक केस आ जाता है जो बताते हैं, इसलिए मैं आई डोंट टेक मच क्लाइंट्स. बहुत पैसा हो जाता है मेरा, अभी जितना इनकम हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा होता, लाखों में कमाती मैं अगर ओपनली क्लाइंट्स लेते. सुबह एक क्लाइंट अगर आके बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना पीटे हैं, ही इज़ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल, और इतना पीटे हैं कि कान के पीछे कुछ मतलब पस जमा हो गया था एंड सीरियस हो गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. और शाम को एक औरत अगर आके बोलती है कि मैंने पहला हस्बैंड को छोड़ दिया, सेकंड मैं किसी मतलब मैरिड इंसान के साथ रह रही थी और मुझे मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं उसको नहीं लिया. आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट काइंड ऑफ क्लाइंट्स. मुझे ऐसे क्लाइंट्स नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट वॉन्ट टू हेल्प दिस काइंड ऑफ पीपल. तो सुबह शाम अगर ऐसे कॉन्ट्रास्ट आते रहते हैं ना, तो तबीयत ख़राब हो जाती है. लेकिन आज सरफराज का हॉरोस्कोप देख के दिल खुश हो गया कि ही इज़ हैविंग 4 planets इन पाइसियन विथ प्रॉबेबली 3 planets इन रेवती एंड 4 इन पाइसियन. जब मैं उससे पूछ रही थी तुम्हारे घर में सब फिलैंथ्रोपी ही करते रहते हैं क्या, ही वॉज स्माइलिंग. वो बोलते हैं कि मेरे एक्चुअली ही इज़ हैविंग 2 planets इन 4th pada ऑफ रेवती. तो 4th pada ऑफ रेवती, एवरी pada ऑफ रेवती, दे आर वेरी फिलैंथ्रोपस. वो इतना देते हैं. मेरे ससुराल वाले मुझे कितना दिया है मतलब पता नहीं, लेकिन मैं अपने कमाई से हमेशा दी हूँ. मेरे हस्बैंड का बहुत कमाई है, लेकिन वो अपने घर वालों को कितना दे, कभी मतलब कुछ गिफ्ट देना है ऐसा कभी नहीं देते हैं.
मेरे घर वालों को तो बहुत दूर की बात है, किसी को मतलब ही हैज़ सम स्पेसिफिक पीपल जिनको वो पैसा देना चाहते हैं। और मेरा ऐसा है कि जो मुझे ज़िंदगी में कभी गिफ्ट नहीं दिए हैं, जो मुझे कभी देंगे भी नहीं, हु इज़ अगेंस्ट मी, ऐसे लोगों को भी मैं अबाउट गिफ्ट आई एम वेरी लीनियंट। तो रेवती का ये नेचर होता है कि अबाउट गिफ्ट दे आर वेरी लीनियंट। मतलब ऐसा होता है कि तुम जिसे गिफ्ट दे रहे हो सुबह शाम, जो जिनके पास तुमसे ज़्यादा पैसा है, तुम्हें वो कुछ भी नहीं देते और तुम्हारी निंदा कर रहे हैं किसी और के साथ, वो भी पता चलता है बाद में। হোয়াট এভার বাট ফোর্থ পাদা অফ রেবতী, ঈশান ওরা দুজনের মধ্যে কেউ সোয়েটার পরেনি, ফটাফট সোয়েটার পরা নিচে নিয়ে যায়। ফোর্থ পাদা অফ রেবতী